Dear students, again I am here with you people with the most important content for you all for the coming board exams, that is for especially mathematics. So, as all lectures have been uploaded chapter wise in the playlist, now this is the time to target our question paper that you are going to see in coming board exam. So before that, what I need is कि आपको पता होना चाहिए marking scheme of your question paper, that is chapter wise marks distribution, so that you could know कि how much you are getting from which chapter. So let's see one by one. This is the marking scheme of 40 marks, and you know well that 4 units are coming in your board exam. मैथ्स पेपर में आपके 4 यूनिट्स आने वाली हैं. So first unit is of relations and functions. So it contains chapter 1 and 2. हमारी फर्स्ट यूनिट में दो चैप्टर्स कवर होते हैं. दैट इज फर्स्ट चैप्टर इज relation and function itself, and second one is inverse trigonometric functions. So it consists of 8 marks. Okay, now second unit is of algebra, जिसमें हमारा आता है chapter 3 and chapter 4, that is matrices and determinants. Together it will consist of 10 marks. Then we have calculus. Calculus is chapter 5 and chapter 6, that is continuity and differentiability and application of derivatives. In total it is all derivative based. ये हमारा पूरा डिफरेंशियल है कैलकुलस में. ये वाला जो पार्ट लिया है कैलकुलस का डिफरेंशियल लिया है. नेक्स्ट टर्म दे विल बी आस्किंग यू फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल बेसिकली. तो ये हमारे हो गए चैप्टर 1 2 3 4 5 6, एंड द लास्ट यूनिट दैट इज कमिंग इन योर एग्जाम इज लीनियर प्रोग्रामिंग, which has been covered in chapter 12. So in total you have 7 chapters for your coming board exam, and marking scheme is written over here. That is unit 1 8 marks, unit 2 10 marks, unit 3 of 17 marks, and then last unit fourth is of 5 marks. So you can see very clearly this is very important, जिसमें आपका कैलकुलस ही 17 मार्क्स स्कोर कर रहा है. So you can say just little bit half than 50%. So this is very important chapter. Maxima, minima, increasing, decreasing, continuity, differentiability, everything is there. So you must practice it well. उसके बाद आपका आता है algebra, that is matrices and determinants, उससे कम weightage के साथ, and then you have relation function and inverse trigonometric function, and then last one is of linear programming. This is very easy chapter. So there is no difficulty in this कि आपको बहुत मुश्किल लगेगा. Even your complete course is simple. It is nothing that is difficult for you. So the target is of 40 marks, and rest 10 marks you will be getting from your school, that is of internal assessment, जिसमें आप जानते हैं मैथमेटिक्स में आपकी एक्टिविटीज होती हैं, and then you have an exam, internal exam basis of activities, जिसमें आपको मिलेगा you have to write an activity and you will give a viva. So many things are there. For this 10 marks you'll get to know from your subject teacher in school. So no need to worry for this. Now our target is of 40 marks which we need to complete. So for that what we are planning to do is I'll be giving you chapter wise very important, that is most important questions, so that you can practice them to achieve 40 by 40 target. So क्या करना है, सबसे पहले तो we have seen the marking scheme. उसके बाद हम करेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फॉर्मूलाज, क्योंकि आप जानते हैं कि यू विल बी गेटिंग एमसीक्यूज. सो एमसीक्यूज में तो बेटे यू हैव टू यूज लिटिल बिट पेन, कि आपको ज़्यादा ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में करनी है, सो दैट यू कैन डू fastly and accurately in question paper. So you have to practice accordingly. So today in this video I'll be starting this procedure of teaching you chapter wise MCQs, important one, and then formulas. So we are dealing with chapter 1 now. So we'll start with the most important formulas of chapter 1. So let's start that. Okay, for you people, I have compiled all the important formulas which are related to chapter 1. इसके बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में आपके surely, because I have written here all the formulas related to functions, relations and the set itself, कि आपको कैसे किस में ट्रिक लगाकर क्विकली आंसर्स कैलकुलेट करने हैं. रेस्ट ऑफ द थ्योरी यू विल डू बाय प्रैक्टिस, लेकिन ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए फॉर्मूला, सो दैट यू कैन स्कोर वेल without giving more time to the question. So let's start with the formula 1. So number of elements in set A. अगर आपके पास कोई भी set A है, उसके अंदर number of elements n है, तो आपको पता है उसमें कितने subsets होते हैं, 2 to the power n. For example, if I have a set having elements 1 2 3,
एंड इन क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू टू राइट नंबर ऑफ सबसेट्स, तो आप क्या लिखेंगे, कितने इसके सबसेट बन सकते हैं। यू मस्ट बी नोइंग सबसेट्स क्या होते हैं। सो अगर नहीं पता है यू मस्ट गो थ्रू द वीडियोस ऑफ बेसिक्स। तो ये हमारे सबसेट्स बताने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 टू द पावर जितने एलिमेंट्स यहाँ रिटर्न है 1 2 3 3 है तो 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 सबसेट्स यहाँ हो जाएंगे। सो सिंपली यू हैव टू लर्न दी फॉर्मूला। आफ्टर सबसेट्स वी हैव रिलेशंस, जिस पर हमारा चैप्टर 1 बेस्ड है, रिलेशन एंड फंक्शंस को फोकस करता है। सो रिलेशंस के लिए क्या करना है आपको, आप जानते हैं रिलेशन इज ऑलवेज इन बिटवीन टू सेट्स, ए टू ए भी हो सकता है, ए टू बी भी हो सकता है, बट आई नीड टू सेट्स एट अ टाइम, चाहे वो अपने आप में रिपीटेशन में हो या फिर दो अलग अलग सेट्स हो। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए सेट है जिसके अंदर है m एलिमेंट्स एंड अनदर सेट विच हैज n एलिमेंट्स। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हैं, यानी इस एलिमेंट को फर्स्ट से हम कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ए बी सी, आई एम कनेक्टिंग 1 टू ए, सो मेरा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 1 टू ए बन सकता है, 1 टू बी बन सकता है, 1 टू सी बन सकता है, सिमिलरली 2 ए 2 बी 2 सी, एंड द लास्ट एलिमेंट किसके साथ कनेक्ट हो सकता है, 3 ए 3 बी 3 सी। So in total how many ordered pairs I am getting from these two sets? These are 9. So total are 9. So 9 कैसे निकला देखो बेटे, number of ordered pairs is simply multiplication of number of elements m into n। तो यहाँ m कितना था, 3 था, 3 elements है, यहाँ पर भी 3 elements है, तो 3.3 will give you 9। So I have shown you with the help of example। एग्जाम में आप डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करके जाएंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने एलिमेंट्स ए सेट में है मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। नाउ इट कम्स फॉर रिलेशन, ये तो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर है। अब रिलेशन कितने बन सकते हैं, यहां से यहां, ये तो पेयर्स बनाए, रिलेशन तो एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बनता है। तो रिलेशन बनाने के लिए यू हैव टू पुट 2 एट बेस एंड पावर विल बी m डॉट n, यानी 2 टू द पावर जितना इनका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर रिलेशन कितना बनेगा, 2 टू द पावर 9। सिंपली यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। आप जानते हैं नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट ही तो होता है। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स बनेंगे या फिर रिलेशन कितने बनेंगे, बोथ आर सेम, 2 टू द पावर m। वी हैव फंक्शंस एज थर्ड पॉइंट। सो फंक्शंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास अगेन यू विल बी हैविंग टू सेट्स, जिसमें आपने ए में सपोज कर लिया है m एलिमेंट्स में एंड बी सेट हैज n एलिमेंट्स। तो क्या करना है, अगर आपको फंक्शंस निकालने हैं कि ए टू बी कितने पॉसिबल फंक्शंस जनरेट हो सकते हैं, सो सिंपली n टू द पावर m, दैट मीन्स बेस में आएंगे वो एलिमेंट्स जो बी सेट में है और पावर में जाएंगे ए सेट के एलिमेंट्स। ओके, सेकंड पॉइंट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर नॉट फंक्शन, यानी आपको ऐसे रिलेशन निकालने हैं जो फंक्शन नहीं है। तो आप टोटल रिलेशन में से फंक्शन माइनस कर दो। टोटल रिलेशन के एलिमेंट्स आपने पीछे देखा 2 टू द पावर mn होते हैं, उसमें से आप माइनस कर दो n टू द पावर m को, यानी टोटल रिलेशंस में से फंक्शंस हटा दो तो वो रिलेशन आ जाएंगे जो फंक्शन में इंक्लूडेड नहीं है। जैसे आपको पता है कि ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 मैपिंग आप जानते हैं क्या होती है। तो अगर आपको डायरेक्टली 1 1 फंक्शंस बताने हैं तो क्या करेंगे आप, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, अगर पहले सेट में एलिमेंट्स, पहले सेट के एलिमेंट हमने m माना है, सेकंड सेट के एलिमेंट्स को n माना है, तो यहाँ लिखा है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी अगर इस सेट के एलिमेंट्स इसके बराबर या a से ज्यादा है n, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे npm, यानी परमुटेशन से आप इसके नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालेंगे। इन केस n की वैल्यू लेस देन m हो जाए, यानी यहाँ एलिमेंट्स कम हो जाए और यहाँ ज्यादा हो पहले सेट में, तो उसमें कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, आंसर विल बी 0। सिमिलरली ऑन टू में भी होता है, अगर यहाँ के एलिमेंट्स बी सेट के कम हो जाए एज कम्पेयर टू ए, और आपको ए से बी रिलेशन मतलब 1 1 ऑन टू बनाना है, तो इसके एलिमेंट्स कभी भी m यानी ए सेट से कम नहीं होने चाहिए। अगर n की वैल्यू कम है तो आपका ऑन टू फंक्शन भी 0 हो जाएंगे और 1 1 फंक्शन भी 0 हो जाएंगे। बट इन केस इफ यू हैव इक्वल एलिमेंट्स और n इज ग्रेटर देन m, तो आप लगाएंगे रिलेशन समीशन सम ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू द पावर n माइनस r ncr डॉट r टू द पावर m। r कहाँ होगा हमारा, r की वैल्यू हमारी कहाँ से जाएगी, 1 से लेकर जो हमारे n तक जाएगी, यानी जितने बी सेट में एलिमेंट्स हैं, फिर माइनस 1 टू द पावर r की वैल्यू 1 है, पहले देन 2 रखी जाएगी, फिर 3 जहां तक भी आपका n जा रहा है, एंड देन यू हैव 0। आई टोल्ड यू कि जब हमारा ऑन टू फंक्शन में 0 कब आएंगे ऑन टू फंक्शन, जब n की वैल्यू m से लेस आ जाए। नाउ द लास्ट पॉइंट इज बाइजेक्टिव फंक्शंस, यानी 1 1 एंड ऑन टू जो दोनों हो उन्हें बाइजेक्टिव बोलते हैं, 1 1 एंड ऑन टू।
sometime you have a question. So for 1 and on 2 functions we have factorial n. So आपको अगर 1 and on 2 दोनों बताने हैं किसी फंक्शन में कि ये हमारी मैपिंग जा रही है फंक्शन है इसमें कितने 1 and on 2 दोनों होंगे तो आपको सिंपली फैक्टोरियल n करना है. You know how to find factorial, you must have learned in 11th standard. तो ये these were the important formulae which you have to learn for your chapter 1 so that you can do each and every question based on them very easily in exam. So I hope you must have noted somewhere, or you can take screenshot of the same so that you can keep with you for revision. तो आप इसे रिवाइज करें उसके बाद ही आप NCERT and your if you are solving any extra sample paper तो जो भी आप कर रहे हैं आपकी कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा अगर आपने ये फॉर्मूलाज लर्न किए हुए हैं तो ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1. यहाँ तो हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो बी इन कनेक्शन एंड आप लोग देखते रहिए जो भी वीडियोज अभी यहाँ अपलोड होती रहेंगी. थैंक यू सो मच.